Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic markets jump to another record high. Sensex closes above 54,000 level. Nifty surges to 16,259. IPOs of 4 companies fully subscribed on first day. And country's largest lender, SBI's net profit jumps 55% in the first quarter. घरेलू शेयर बाजार उछाल दर्ज करते हुए ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे। सेंसेक्स 54,000 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी तेज वृद्धि के साथ 16,259 पर बंद हुआ। 4 कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को पहले दिन ही पूरी सब्सक्रिप्शन हुई प्राप्त और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 55% के उछाल में रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां नए रिकॉर्ड स्थापित करने का सिलसिला जारी रखते हुए सेंसेक्स और निफ्टी आज ताजा ऐतिहासिक उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। उत्साहजनक कंपनी परिणामों और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बल पर बाजार में ये तेजी आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की तेजी से 546 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 54,370 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.8% की बढ़त से 128 अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए 16,259 पर बंद हुआ। लेकिन विस्तारित बाजार में आज रुख गिरावट का रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक प्रत्येक 1.1% के नुकसान पर बंद हुए। Continuing its record-breaking spree, both Sensex and the Nifty closed at fresh all-time highs today on the back of encouraging corporate earnings and positive global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange jumped 546 points or 1% to close at 54,370. The Nifty at the National Stock Exchange rose 128 points or 0.8% to end at 16,259. However, in broader market, the BSE mid-cap index and the small-cap index lost 1.1% each. In the Sensex Pack, 13 of 30 Sensex stocks ended the day in green. HDFC was the top gainer, climbing 4.6%. Kotak Bank jumped 3.9%. ICICI Bank rose 3.5%. Among the top losers, Titan declined nearly 2%, Nestle declined 1.4%, and Sun Pharma dropped 1.2%. Most sectoral indices on the BSE declined. Among the gainers, the BankX was a top gainer with a surge of 2.6%. Finance index advanced 2.1% and the energy index rose 0.4%. Among the losers, the telecom index plunged the most at 2.3%. Realty index declined 1.7%. The consumer durables index lost 1.4%. The FMCG index dipped 0.9%. Capital goods and auto indices fell 0.8% each. The healthcare index shed 0.6% and oil and gas index dipped 0.5%. The IT index declined 0.4% and the metal index was down 0.2%. Mr. Bhattacharya, like we just saw that the Sensex, the markets are continuing, the indices are continuing with the upward trend and record yet again after yesterday. Of course, there are various factors to this. But what, according to you, if we were to put it very, in a concise manner, what, according to you, are the top factors that have affected the markets that are, contributing to the market's rise? Well, it is not just today, but over the last few sessions, what we have seen, a combination of factors has been responsible for a buoyant market.
I think you mentioned about corporate earnings, Yes. which is the number one factor. Corporate earnings have seen a substantial rise, actually a rise that one has not seen for the last several years. In spite of a very, very moderate rise on the top line, the differential between the top line and the bottom line has been huge. That is one major factor which has kept the stock market buoyant. The second factor, which you also mentioned, is how the global cues in terms of the crude oil prices are falling because of the Delta variant rise. Therefore, that has also given a positive support. In addition to those two factors, I would cite that suddenly you are seeing that an upturn in the state of government finances, which is driven by a rise in tax revenues and the government's ability to have more resources at its disposal to spend on various schemes and other things. And the fourth factor is, because of a fall in the international crude oil prices, the earlier fears that the domestic retail prices of petrol and things may actually go up further, those fears have been addressed. And finally, I would say that in the last 1 month, to have clocked an average vaccination of around 4.5 million vaccinations is actually given the confidence to industry that risk aversion, which was a big factor, that probably is being countered, although the R factor rise will in the coming days will play a negative impact, will have a negative impact on this kind of a positive sentiment in the market. One has to see whether the R factor going above 1 actually spreads to other states apart from the 8 states which has already been affected by it. So it's a combination of factors. Right now, good news, but one has to be very, very watchful of what happens next on the COVID Delta variant progress. मिस्टर भट्टाचार्य, जैसे आपने कहा कि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार की तेजी के पीछे हैं, और अक्सर जो हमारे कई लिसनर्स भी होते हैं और कई एनालिस्ट का भी ये एक पॉइंट होता है कि जो बाजार है और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कई बार सिंक में नहीं होती। लेकिन अभी आपको लग रहा है, अगर हम जीएसटी फिगर्स को देखें या पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स को देखें जो जुलाई के लिए आई हैं, ईवे बिल्स एट रिकॉर्ड 17.4% इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स में बहुत 30% 40% की बढ़त होना, और ऑटो सेल्स, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, क्या ये दर्शा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और शायद इससे भी बाजारों को एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ मिलेगी, फंडामेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी? देखिए, ये जो आपने सही कहा, ये जो आपने सारे जो बिंदुओं के ऊपर जो दृष्टि आकर्षित किए हैं आपने, ये सारे सही हैं। ये रिकवरी की और दिखाती है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं, ऑटो सेल्स कहें या जीएसटी कहें या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की जो नंबर आती है उसको कहें, ये सारे चीज दिखाते हैं कि जो इकोनॉमी सेकेंड वेव के बाद एक अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। पर सवाल ये है कि ये गति किस तरह से और भी आगे सस्टेन हुई। इस वक्त मार्केट का जो असेसमेंट है कि ये गति सस्टेनेबल गति है, ये गति आगे भी जाकर ये मार्केट देख रही है कि इकोनॉमी की रिकवरी सस्टेन रहेगी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आप मार्केट का जो रुख है वो मार्केट की फ्यूचर असेसमेंट, इकोनॉमी के फ्यूचर असेसमेंट क्या है उसके ऊपर निर्भरशील है। पर इस वक्त जो हो रहा है इकोनॉमी में वो एक रिकवरी फेज है, और वो रिकवरी फेज ज्यादा से ज्यादा गति मिले अच्छी बात है, क्योंकि इस रिकवरी फेज के बाद भी जो हमारी अर्थनीति की जो साइज है वो भी पुरानी साइज में नहीं आई है अभी तक। जो इस अर्थनीति में जो हमारी जो रिकवरी हुई है वो अभी भी मैं मानता हूं कि वो के शेप रिकवरी है, कि एक हिस्सा ऊपर जा रहा है और एक हिस्सा नीचे जा रहा है।
तो डिमांड रिवाइवल, सस्टेनेबल रिवाइवल अभी भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होकर हमारे सामने रहा है। पर मार्केट का कहना दूसरी बात है। मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, मार्केट समझती है कि ये जो ग्रोथ जो है, स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वैक्सीनेशन ड्राइव, रिस्क अवर्शन का दूर होना, टूरिज्म का वापस आना, एंटरटेनमेंट सेक्टर का वापस आना, ये सारे को देखकर ये मार्केट इस तरह से एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है जो इकोनॉमी का जो अगला जो जर्नी जो होगा, यात्रा जो होगा, वो विदाउट problems या challenges होगा, नहीं होगा। You mentioned, of course, all the things that you're talking about. You've mentioned the markets are reacting to the Indian economy rebounding, bouncing back. That's, of course, as the days progress, we'll see that happening. But if we talk about another immediate, factor which may have bounced up the markets, it's the RBI's monetary policy committee meeting which started today. Do you think that's also a major factor, because everybody is expecting the RBI to continue with its dovish stance and retain the interest figures at the all-time low? You are right. The market's assessment is that RBI will maintain its dovish stance. It will maintain its accommodative stance on monetary policy. Rates will not go up. But my sense is, my reading is that the market may be in for a mild surprise in terms of what RBI does on its inflation forecasting, because the manner in which the consumer price index moved beyond 6%, which is the upper tolerance band mandated under the inflation targeting regime of the government, for 2 consecutive months in May and June. So therefore, my sense is the RBI may talk a little tough on the need to rein in inflation, and if some steps are need to be taken, then the RBI will be considering them, and that indication will be made available. Remember that right now, from 2 months ago, the liquidity in the system was 7.5 lakh crore. Today it has gone up to 10 lakh crore. So there is an excess liquidity in the market, and the credit growth is not taking place. So there was a lot of money sloshing around, and that may also be fueling the inflation spike. So therefore, RBI will have to send out a signal to the market that it is not very comfortable with the current inflation trajectory, and the inflation must come back below its upper tolerance band of 6%. And if that may well be a kind of not a spoiler, but the market probably will have to take note that RBI is for growth, but it is also worried about inflation, and that would be probably a bit of a surprise for the market when the policy is announced on Friday. मिस्टर भट्टाचार्य, अभी आपने के शेप रिकवरी की बात की थी। अगर हम के शेप देखें तो रैली भी जो आज आई है सेंसेक्स में, वो के शेप रैली है। निफ्टी और सेंसेक्स नए हाइट्स पर पहुंचे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में 1.1% ईच की गिरावट आई है। 30 सेंसेक्स स्टॉक्स में से 13 गिरे हैं, एंड इवन सेक्टोरली जो परफॉर्मेंस है वो लाइक ब्रॉड बेस नहीं रही है। सो आपको लगता है कि अब इतने जो हमने रिकॉर्ड जो अचीव किया है बाजार में, उसके बाद वैल्यूएशंस भी एक कंसर्न रहेंगी, और अभी हम कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के इस पैटर्न को देखकर? देखिए, कंसोलिडेशन जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो गया है, ये भी एक फैक्टर है। प्रॉफिट बुकिंग का जो टेंडेंसी जो होगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जो आपने जो बात कही के शेप रिकवरी की बात, हम इसको पूरी तरह से के शेप रिकवरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो काफी पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा बढ़ गया था। शायद उस स्मॉल कैप और मिड कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है मेरे ख्याल से, इसीलिए उनमें मार्केट में ज्यादा तेजी नहीं दिखी है। पर जो सेक्टर्स की जो बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि वो सेक्टर जो है वो जरूर के शेप रिकवरी की ओर हमारा दर्शाता है, क्योंकि अगर डिमांड
अगर रिवाइव ठीक तरह से अगर ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि कुछ कंपनियां, ऑर्गेनाइज सेक्टर के टॉप कंपनियां ज्यादा ग्रोथ करेंगी और उनकी जो प्रॉफिट अर्निंग्स होगी वो प्रॉफिट अर्निंग्स लोअर सेल्स से हो रही है। तो ये जो मैं समझता हूं ये सस्टेनेबल लेवल नहीं है। तो अनलेस ये ट्रेंड में कोई करेक्शन आए कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हो और जो सेल्स भी ग्रो करे उसके साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो करे, तभी मैं समझता हूं कि डिमांड रिकवरी ब्रॉड बेस्ड होगा, सस्टेनेबल होगा और स्टॉक मार्केट की जो गति जो है उसी तरह बरकरार रहेगी। Moving on, initial public offers of 4 companies were fully subscribed within a few hours of opening of bid today. Devyani International received bidding that were 2.7 times of the issue size. Windlass Biotech saw 3.2 times subscriptions. Exaro Tiles received subscription of 4.7 times, while Krishna Diagnostics IPO saw 1.98 times subscription. These 4 companies are looking to raise up to 3,614 crore rupees through IPOs. और अब चले करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार तीसरे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की मजबूती से 74 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में ये तेजी घरेलू शेयर बाजारों में उछाल और आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों आईपीओ में आए प्रवाह के बल पर दर्ज हुई। आईपीओ को जो इतना एक सराहनीय रिस्पांस मिल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? क्या ये भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है? कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं ये जो आईपीओ की में जो एक बूम जो आया है वो मैं इकोनॉमी के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट में जो एक तेजी जो आई है उसी को ये दर्शाती है। जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है जो आईपीओ जो दिखते हैं वो आईपीओ में भी एक ज्यादा एक आकर्षण लोगों का बढ़ जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ जाता है। और जितने हमने आईपीओ देखे हैं, जितने आईपीओ आने वाले हैं, उनमें भी मैं समझता हूं कि जो मार्केट में डिमांड जो होगी उन आईपीओ की बढ़ेगी। पर हमें ये देखना है कि जो एक आईपीओ का मार्केट है उसको बहुत लोग दो तरफ से देखते हैं। एक तरफ से देखते हैं कि एक मार्केट में एक जुनून सा छाया होता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, आईपीओ भी अच्छा कर रहा है। पर जब मार्केट बूम के बाद आईपीओ भी बढ़ता है तब एक दूसरा भी एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट क्या ओवरहीटेड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप जो कंपनियां आईपीओ में सक्सेस हो रही हैं उनकी लिस्टिंग के बाद अगर उसको मेंटेन ना कर सकें उसमें वो मार्केट में एक उल्टा एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आईपीओ बूम के बाद मार्केट की क्या रुख रहे। पिछले अगर हम 2007, 8, 9 में देखें जो आईपीओ बूम एक अच्छा एक इंडिकेशन नहीं लाया था उस टाइम मार्केट में। तो हमें ये देखना है, ठीक तरह से बहुत वॉचफुल रहना है कि ये आईपीओ बूम सस्टेनेबल रहे या इसमें कोई ऐसा कुछ इंडिकेशन तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल्स आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट अनसस्टेनेबल है, पर जरूर एक बबल बनने की डर हमें रहना चाहिए। जो मैं स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आईपीओ बूम एक इतने बड़े स्टॉक मार्केट की रैली के बाद बहुत बार हमने पास में देखा है कि एक बबल बस्ट होने की एक डर रहता है। वो हमें उसके बारे में हमें कॉशियस रहना है। Mr. Bhattacharya, like Sonu just read that the rupee strengthened. This was a third straight session when the rupee rose against the US dollar. And of course, one reason was, of course, the domestic rally and the IPOs. But do you think there are other factors as well that the rupee is showing such, the rise against the dollar, given that it's one of the best performing, right now it's one of the best performing currencies in Asia? Well, one is, of course, the dollar has weakened. Number two is our exports have done exceedingly well, and our imports have also done well. As a matter of fact, trade deficit has actually gone up, which is a positive sign for economic activity in the economy. But the third factor, which is a very important factor, is that we continue to get
the foreign portfolio investment, and our foreign exchange reserves as a result continue to grow, and to have a foreign exchange reserve which is more than $610 billion is actually a sign of strength in the economy, and therefore the ability of the Reserve Bank to fight any sudden overflow gives strength to the domestic currency, and the domestic currency tends to overvalue and get stronger. आइए अब रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। उत्साहजनक कंपनी परिणामों के बल पर अन्य एशियाई बाजारों के अधिकांश प्रमुख सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.3% का उछाल आया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.1% की वृद्धि में रहा, लेकिन जापान के निक्केई सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के विश्व में फैलने पर चिंताओं के बावजूद निवेशकों ने अपना ध्यान उत्साहजनक तिमाही परिणामों और विलय गतिविधि में लौटी मजबूती पर केंद्रित कर दिया और यहां के बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.4% की बढ़त पर था, फ्रांस के कैक में 0.5% की वृद्धि थी और जर्मनी के डैक्स में 0.9% की तेजी आ गई थी। यूके के होम बिल्डर टेलर विम्पी पीएलसी द्वारा पूरे वर्ष के लिए आमदनी के अपने अनुमान को बढ़ा देने के बाद इस कंपनी का शेयर 4% बढ़ गया। वहीं जर्मनी की फैशन कंपनी ह्यूगो बॉस के शेयर में 1.3% की वृद्धि कंपनी द्वारा ये अनुमान देने के बाद आई कि उनके व्यापार में फिर आई मजबूती इस वर्ष की दूसरी छमाही में भी जारी रहेगी। In the U.S. markets, the S&P 500 index closed at record high yesterday on gains in Apple and healthcare stocks, despite concerns over a surge in the Delta variant of the coronavirus, taking some shine off an upbeat corporate earnings season. The Dow Jones Industrial Average rose 278 points or 0.8% to finish at 35,116. The S&P 500 gained 36 points or 0.8% to 4,423. And the Nasdaq Composite added 80 points or 0.6% to rise to 14,761. 10 of the 11 S&P indexes traded higher, with energy stocks rebounding after getting hit by a dip in oil prices. Apple rose 1.3%, but other heavyweight technology stocks including Netflix, Tesla and Facebook continued to edge lower, capping gains on the tech-heavy Nasdaq. A deepening regulatory scrutiny in China has sent jitters through the global technology sector. Shares in US and European listed gaming companies fell after a steep sell-off in China's social media and video games group Tencent, driven by fears that the sector could be next in regulators' crosshairs. A clutch of U.S. companies, including industrial materials maker DuPont and Discovery, reported better than expected quarterly results, but their shares fell as investors booked profits amid lofty stock valuations. In economic news, data showed U.S. factory orders rose 1.5% in June after a 2.3% increase in the previous month. Mr. Bhattacharya, China का जो रेगुलेटरी क्रैकडाउन हुआ है बिग टेक कंपनीज, एजुकेशन और अदर सेक्टर के भी बिग कंपनीज में, इसका ब्रीफली अगर बता सकते हैं इसका क्या रीजन है एंड हाउ इज इट लाइकली टू अफेक्ट इंडिया? क्या हमारे लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकती हैं या आपको लगता है कि हमारी कंपनीज में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है जैसा हम यूएस में देख रहे हैं आज के बाजार में? देखिए, जो चाइनीज क्रैकडाउन जो है टेक कंपनीज में, उनके गेमिंग कंपनीज में, एडुटेक कंपनीज में, वो उसका जो प्रभाव दो तरफ से होगा, हमें देखना पड़ेगा। एक तो है कि जो कंपनियां की जो यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट जिन कंपनी में है उनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हम देखेंगे, वॉलेटिलिटी आएगी, पर मैं समझता हूँ ये एक इंडियन एडुटेक, इंडियन गेमिंग, इंडियन आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है, क्योंकि जो चाइनीज कंपनियां जो अमेरिका में लिस्टेड हुई हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन से, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका में भी जो टेक कंपनीज के ऊपर एक रेगुलेटरी क्रैकडाउन हम इंडिकेशन आ रहे हैं उसके। नए जो एफटीसी कमिश्नर जो है नीना खान, वो काफी अमेजन जैसे कंपनी के ऊपर काफी उनका इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है। तो टेक कंपनियां चाइना में कहें या यूएस में कहें, जो स्टॉक मार्केट भी यही दर्शाता है कि वो जरा दबाव में है।
ये मैं मानता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और हम ये अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी देख रहे हैं। आप एक इंडियन एडुटेक कंपनी बाइजूस को देखिए, वो अब अमेरिका कंपनी खरीद रहा है, बाहर जा रहे हैं, 4-5 और नए देशों में अपना एक वो नया खाता खोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इंडियन एडुटेक और इंडियन गेमिंग कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी जो टेक कम्युनिटी जो है इसको पूरी तरह से इसका पूरा फायदा उठा सके, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इवेंट उन सेक्टर के लिए हो सकता है। पर जिन कंपनियों के पास चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स जुड़ा हुआ है उनके लिए सोच समझ के उनको आगे बढ़ना होगा। Moving on, global crude oil prices fell today as the spread of the coronavirus Delta variant in top consuming countries outweighed Mideast geopolitical tensions and a fall in U.S. inventories. Brent crude oil futures declined 67 cents to $71.74 a barrel. U.S. crude fell 86 cents to $69.7 a barrel. The U.S. and China, the world's two biggest oil consumers, are grappling with rapidly spreading outbreaks of the highly contagious Delta variant that analysts fear will limit fuel demand at a time when it traditionally rises in both countries. As expected, a fall in U.S. inventories, however, capped some losses and both contracts traded slightly higher earlier in the session. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में डिलीवरी वाले सोने का मूल्य 330 रुपए के उछाल से 48,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। सितंबर में डिलीवरी वाली चांदी का मूल्य भी 266 रुपए की तेजी से 68,180 रुपए प्रति किलो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,822 प्रति आउंस पर था। चांदी भी वृद्धि दर्ज करती हुई $25.84 प्रति आउंस पर थी। और अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कंपनी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आज एसबीआई का रिजल्ट बहुत स्टेलर आया है। बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना शुद्ध लाभ 6,504 करोड़ रुपए दर्ज होने की सूचना दी। पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले ये 55% का उछाल है। एसबीआई की शुद्ध ब्याज आमदनी इस तिमाही में 3.7% बढ़कर 26,642 करोड़ रुपए हो गई। अन्य आय में 48.5% का उछाल आया और ये 11,802 करोड़ 70 लाख रुपए दर्ज हुई। पिछली तिमाही में एसबीआई द्वारा संकटग्रस्त ऋणों के लिए रखी गई राशि यानी प्रोविजंस कम हो गए, लेकिन परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट आ गई। प्रोविजंस और आपात राशि 19.6% कम होकर 10,052 करोड़ रुपए पर थी। एसेट क्वालिटी की बात करें तो पिछली तिमाही में बैंक के सकल संकटग्रस्त ऋण एनपीए इससे पिछली तिमाही के 4.98% के मुकाबले बढ़कर 5.32% थे। बैंक के शुद्ध एनपीए अनुपात भी पिछली तिमाही के 1.5% के मुकाबले बढ़कर 1.77% थे। उधर टाटा समूह की कंपनी टाइटन ने आज जून में समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 61 करोड़ रुपए दर्ज होने की सूचना दी। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 270 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। आवास वित्त कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का संकलित शुद्ध लाभ 243 करोड़ 30 लाख रुपए दर्ज होने की सूचना दी। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले ये शुद्ध लाभ में 5% से अधिक की गिरावट है। And Adani Green Energy has posted nearly 10-fold jump in its consolidated net profit at 219 crore rupees for the June quarter. Moving on, the 3-day meet of the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee began today in Mumbai. The MPC will decide on key monetary policy rates. The central bank will announce its bi-monthly monetary policy review on the 6th of this month. The RBI is likely to maintain the status quo on interest rates and watch the developing macroeconomic situation for some more time before taking any decisive action on monetary policy. And the Reserve Bank of India has extended the deadline for implementation of its guidelines on current account opening by banks to 31st October from July 31st. RBI said it has agreed to extend the time frame in response to requests from banks for some more time to resolve the operational issues arising from the notification. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets jump to another record high. Sensex closes above 54,000 level. Nifty surges to 16,259. IPOs of 4 companies fully subscribed on day 1. And country's largest lender, SBI's net profit jumps 55% in the first quarter. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Do join us then. Till then, this is Anubha Rodki and Sonu Sood saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.
Market Master.